Morning, ma'am. Okay, so today's topic is interview technique. Now, what do you understand when I say interview technique? किस लिए चाहिए इंटरव्यू टेक्निक, क्या जरूरत है या फिर क्या होता है इंटरव्यू टेक्निक का मतलब? Anyone from your side? Hello. What do you understand? How to appear for the interview or how to take an interview? Yes. Again, you say anything else other than this? Yeah, how to appear for that? What will be the preparations for? Okay. Good. Very good. Thank you. Anyone else? Anything comes to your mind when we say interview techniques? आप लोग में कोई बता सकता है? Nothing? इंटरव्यू मतलब जब हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें लगता है कि इंटरव्यू उसको बोलते हैं जो हम प्रिपरेशन करते हैं रिगार्डिंग एनी जॉब। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इंटरव्यू तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल बॉडी एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जॉब इंटरव्यू, सो टुडे वी आर गोइंग टू ऑफ कोर्स टॉक अबाउट जॉब इंटरव्यूज। अगर बोर्ड नहीं दिखता है तो मुझे बताना। दिख रहा है बोर्ड? So of course, regarding job interview, today we are going to talk about. Now, mostly as my students are there who are into teachers training. Apart from that, if anyone else from other field, please let me know. Though we will be covering both the examples of education and other sectors also, like in sales and all other jobs, whatever you would like to go for. Now, when it comes to interview, what do you think? What you need to do to prepare, or what may be the factors that are responsible when it comes to interview? आपको जो भी लगता है, whatever comes to your mind कि okay, ये factors हो सकते हैं और ये सारी चीजें मुझे थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए. So whatever comes to your mind, try to speak out. Then we will start. Basic knowledge. क्या चाहिए? Basic knowledge of the subject. Basic communication. How to communicate. बोलो. Communication, yes. Communication skill, okay. And potential of any candidates. In which subject you are giving the interview. So on the examination you have the full knowledge. So the person who is asking something will have the answer. हाँ, आपकी तरफ से कोई कुछ बोलना चाहता है? How to present ourselves. How to present ourselves. Very good. Anything else? Yes, ma'am. How you look, what you say, your body language. Okay. Yes, Saili, आप भी बताओ. Ma'am, confident होगा. Yes, and along with that, firstly to understand what is the business requirement, what is the job description, and what is the business requirement, and even understand from the professional perspective about overall domain of the organization and work. Very good. Wonderful. Anything else? Any input from anyone? Okay. That's it. Should we start then? Okay, and share my PPT with you all. Now this PPT is for the overall grooming session. Now we are taking only one topic today, that is interview technique. So hope it must be visible to all of you. आपको भी दिखा. Visible? सबको दिख रहा है? Yes, ma'am, it's visible. आप लोग को लैपटॉप दिख रहा है? दिख रहा है ना? कि टिल्ट करो पूरा ऐसे. फाइन ना? तो थोड़ा सा ऐसे आप यहाँ पे बैठो. Okay, so interview techniques. So first thing is you need to understand yourself, then you need to understand organization, and then you need to understand the position. So these are the basic preparation you need to do as and when it comes to interview. सबसे पहले खुद को पहचानना है,
कि आप हो क्या, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया है आप उसमें फिट हो रहे हो कि नहीं हो। उसके बाद आपके अचीवमेंट्स क्या है, आपके पास क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या स्किल्स है, तो आप उस जॉब के लिए फिट हो सकते हो। So why you are best fit for that particular job, that also you need to identify from yourself, and of course your achievements, rewards up till now, whatever experience you are having, everything. So knowing about yourself, that is understanding yourself, is the first thing. Then you need to understand your employer also, whatever organization you would like to apply. So you need to understand them. For that you need to do the proper research. आप उनका वेबसाइट चेक करो, आप देखो, अगर समझो स्कूल में आप जा रहे हो तो क्या वो लाइक उनके बहुत सारे सेंटर्स है पुणे में, या फिर जहाँ पे भी जिस सिटी में आप कर रहे हो, फिर उनके कितने ब्रांचेस है, फिर उनका हेड ऑफिस कहाँ पे है, वो कौन सी पेडागोजी फॉलो करते हैं, है ना। तो स्कूल्स के लिए ये सारी चीजें आप देख सकते हो, तो दैट विल बी योर प्राइमरी रिसर्च। सो understanding organization, so you have to do your own research about the organization and also go through the job description properly. जॉब डिस्क्रिप्शन में आपके जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको वहाँ पे निभाने हैं वो प्रॉपरली मेंशन रहेगा कि आपको क्या क्या चीजें वहाँ पे करनी है। ऑफ कोर्स टीचर्स के रोल में टीचिंग ये मेजर होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सेवरल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आल्सो you need to manage, and again there are some administrative positions also available in the schools. For that again the requirements are different, and when it comes to different kind of organization based on the industry type, it will change. So job description you need to go through, so understand organization, understand the position, that is very important. And then third point is understanding the position. So what exactly these positions are? ओके, ये प्राइमरी टाइप की पोजीशन, मतलब किस टाइप का ये पोजीशन है, ये परमानेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ये कुछ एक छोटे से पीरियड के लिए है, किस टाइप का ये ओवरऑल पोजीशन होने वाला है, आप सीनियर पोजीशन के लिए जा रहे हो, एंट्री लेवल की पोजीशन के लिए जा रहे हो, जो भी है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में ये पोजीशन कहाँ आता है, क्या सारी चीजें। तो अंडरस्टैंडिंग फॉर विच पोजीशन एक्चुअली यू आर गोइंग टू अप्लाई। So this is what is you may say preliminary requirement. ये सबसे पहले जो बेसिक बोलते हैं ना, तो ये बेसिक, ये प्रिलिमिनरी 3 रिक्वायरमेंट है जब when it comes to इंटरव्यू टेक्निक। अब यहाँ पे इस स्लाइड पे बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड चीज दिख रहा है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट वी विल मेक इट सिंपल। तो पहला तो इन्वेंट्री बनानी है, ओन इन्वेंट्री। अब ओन इन्वेंट्री में क्या क्या आता है, ओके, which are your qualifications. So education में आपने कुछ main education आप लेते हो, जैसे आप degrees, diplomas करते हो, that is your major qualification. But apart from that also you do some other qualification, additional qualifications, some skill based trainings. So you may do some other kind of additional skills or knowledge or education also. So apart from your degree or whatever main education you are having, what are different things you have done? So you need to jot down all together. So that is inventory of your education. Then experience, both paid and unpaid. If at all you have done some kind of stipend based or without stipend, some kind of internship you have done, that also you have to mention. If you have done job, so of course that you have to mention as experience. If at all you have worked as some kind of project trainee and all, so that also you can consider yourself as an intern and you can mention that also. Then accomplishments and achievements. So whatever kind of achievements you are having throughout your professional career, even in the personal life also, so all that you can actually mention. Then skills and competencies, whatever kind of you may say apart from educational field, if you are having additional skills and competencies, जैसे कोई बहुत अच्छे से सिंगिंग करते हैं, किसी कोई स्पोर्ट में बहुत अच्छे हैं, है ना, तो आपका अपार्ट फ्रॉम यू में से को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अगर कुछ है, तो दैट आल्सो यू कैन कंसिडर एज स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। देन कम्युनिटी सर्विसेज, सो आपने अगर कुछ सोशल सर्विस किसी को हेल्प किया है, जैसे अभी ड्यूरिंग कोविड मेनी पीपल हेल्प पीपल दोज हु नीड सम काइंड ऑफ हेल्प, और सब इमरजेंसीज आते हैं, कभी कहीं पे फ्लड आ जाता है या कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वहाँ पे आपने एज अ वॉलंटियर कुछ काम किया है क्या, कुछ आपका सोशल कंट्रीब्यूशन है क्या, तो वो सारी चीज़ें भी आप कम्युनिटी सर्विस में मेंशन कर सकते हैं। फिर आप किसी क्लब के मेंबर हो क्या, कहीं पे आप ऐसे
नेटवर्किंग ग्रुप में या किसी ग्रुप में आप जाते हो क्या, यू आर एक्चुअली हैविंग सम ग्रुप ऑफ पीपल हु you know very well and you are interacting with them on a regular basis. So ये भी आप बता सकते हो. Then extra curricular activities अगर आप कुछ करते हो तो वो भी आप mention कर सकते हो. बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज के लिए अलग अलग ग्रुप, योगा होता है, डांस, जुम्बा, एरोबिक एंड ऑल. So again you meet some another community people. So that also you can mention. That shows that your networking is wide. Means you know many people in the community and all around you, so that enhances your credibility, right? Then your work ethics and values, so how responsible you are for your work life. Now showing small experiences on your resume, it actually make your profile weaker. आप अगर एक काम को ढंग से करते हो, आपने मिनिमम 1 साल का अगर कहीं पे जॉब किया है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस. 2-4 महीने यहाँ किया, 2-4 महीने वहाँ किया, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इट एक्चुअली मेक योर प्रोफाइल वीकर एंड वीकर. दैट शोज दैट यू आर नॉट having those kind of skills to take the whatever kind of responsibilities you are having. You are unable to or not capable to take those responsibilities, and because of that you are leaving the organization actually making you go out of their space. So it should not happen that 2 महीने 4 महीने कहीं काम किया तो वो आप दिखाओ ही मत आपके रेज्यूमे में. आपने अगर कहीं पे 1-2 साल अच्छे से काम किया है, वही कंसिडर होगा कि वो आपका एक्सपीरियंस है. अगर आप फ्रेशर हो तो देन वॉट एवर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस यू आर हैविंग, उसमें आपने क्या किया. समझो फॉर एग्जांपल MBA MCA ये जो प्रोग्राम्स है, इसमें मेडिकल के प्रोग्राम होते हैं, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम होते हैं, दे आर हैविंग लाइक लॉन्ग ड्यूरेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, है ना. तो उनका जैसे MCA में तो हमारा पूरा 6 महीने का इंटर्नशिप होता है, IT कंपनी में जाके हमें इंटर्नशिप देना पड़ता है. तो वहाँ पे फिर वो जो 6 महीने है दैट मे कंसिडर एज अ जॉब एक्सपीरियंस. So during your qualification, educational background itself, whatever kind of projects you worked on, whichever organization you worked on, whichever products or services you might have handled, which kind of people you might have made there, what kind of responsibilities actually you are handling there. So all these kind of things you can actually mention within your resume. Actually क्या होता है resume में भी फिर जो experience वाले लोग होते हैं उनका resume होता है. जो एकेडमिक बेस्ड होता है उसे करिकुलम वाइटी कहते हैं. करिकुलम वाइटी गिव्स यू मोर डिटेल्स अबाउट द एजुकेशनल थिंग. मतलब आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर वो करिकुलम वाइटी हो जाता है. एंड बायोडाटा नहीं लिखने का, बायोडाटा जो है जब आप शादी करने के लिए जाते हो, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसको बायोडाटा बोलते हैं. तो बहुत बार बायोडाटा लेके आते हैं मेरे पास लोग इंटरव्यू के लिए, एंड इट गिव्स वेरी वेरी बैड एक्चुअली एक्सपीरियंस, और उनका जो इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन ही वहाँ पे डाउन हो जाता है. बायोडाटा इज समथिंग विच इज ओनली इंक्लूड योर पर्सनल डिटेल्स. आपका हाइट कितना है, आपका स्किन कलर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेटिव प्लेस, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग में कम इन बायोडाटा. सो प्रोफेशनल बैकग्राउंड में, प्रोफेशनल सेटअप में आपको बायोडाटा नहीं देना है. आपको रेज्यूम या करिकुलर, अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको करिकुलर वाइटिंग लिख सकते हैं. एंड सबके सैम्पल फॉर्मेट्स आपको नेट पे मिलेंगे. गो थ्रू द सैम्पल फॉर्मेट, actually create your nice curriculum vitae or your resume. So that is what is the first step for preparing for the interview. ठीक है. एंड ये आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए. तो सबको डिफरेंस समझ में आ गया, बायोडाटा, करिकुलर वाइटी एंड रेज्यूम. क्लियर? CV. Yes, ma'am. करिकुलर वाइटी जो मैंने अभी बोला ना, उसको ही CV कहते हैं, शॉर्ट. करिकुलर वाइटी कोई CV कहते हैं. अभी एक क्वेश्चन है CV किसे कहते हैं, तो करिकुलर वाइटी इज CV. ओके. किसी को कुछ पूछना है? तीनों का हमने अभी डिफरेंस भी देखा. ओके. सो नाउ स्टेप 2 इज CV का बताओ ना फिर से बता. ओके. आपका जो बायोडाटा होता है उसमें पर्सनल डिटेल आते हैं. शादी के लिए बायोडाटा बनता है जनरली. प्रोफेशनल जॉब के लिए आपको CV या रेज्यूम बनाना पड़ेगा. CV करिकुलर वाइटी, जिसमें आपके एजुकेशनल डिटेल्स जो है उसको आप बहुत डिटेल में डालते हो, क्योंकि आप फ्रेशर हो तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो डिटेल्स आप वहाँ पे नहीं डाल सकते. अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, मोर देन 2 to 5 years एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप रेज्यूम बनाओ.
रेज्यूम में फिर आप सारे प्रोफेशनल आपने जो पोजीशन पे काम किया है वहाँ का सारा एक्सपीरियंस वगैरह आप अच्छे से डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, तो आज मेजर हम इंटरव्यू के लिए पे बात करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा उसका प्रायर है इंटरव्यू को जाने के लिए, ऑफकोर्स आपके पास ये होना चाहिए, बट दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट 3 थिंग्स दैट यू शुड नो एंड यू शुड बी रेडी विथ। अब दूसरा जो है स्टेप 2 है आपके प्रोफाइल के रिगार्डिंग। तो आपका एक आपको प्रोफेशनल रेज्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर जैसे मैंने बताया अगर आप फ्रेशर हो तो आप सीवी बनाओ। देन लुक फॉर वेज टू पुट अ पॉजिटिव स्पिन ऑन योर करियर हिस्ट्री। अब रेज्यूम का बात तो बता दिया, अब पॉजिटिव स्पिन कैसे डालोगे? पॉजिटिव स्पिन डालना मतलब उनको जिनके पास आप जा रहे हो उनको ये कन्विंस हो जाए कि यू आर फिट फॉर द पोजिशन, राइट? तो वो पॉजिटिव स्पिन डालने के लिए यू अंडरस्टैंड द पोजिशन फर्स्ट, यू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन, देन यू अंडरस्टैंड where actually you could put your skills and your qualification, that okay, it shows that you are eligible for the position. So that positive spin makes you or gives you more boost toward getting the call for the interview, because first step is getting the call. अगर आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए उन्होंने 10-15 दिन का टाइम दिया है, then you will be sending the resumes and then they will shortlist the resume, है ना? तो शॉर्टलिस्टिंग में आपका रेज्यूम कैसे आए उसके लिए आपको फिर रेज्यूम पे ज्यादा काम करना पड़ता है, अच्छे से काम करना पड़ता है। तो शॉर्टलिस्टिंग of the resume is very very important if the company is a very huge company wherein they are getting lakhs of people applying, or on daily basis so many applications they are getting. In that case, so they may have a very very strict criteria for the shortlisting. अगर उतना रिस्पॉन्स नहीं आया तो हो सकता है वो क्राइटेरिया थोड़ा बहुत ये कर दे, शिथिल कर दे, या फिर हो सकता है कि एटलीस्ट वो बुला ले आप लोग को। बट अगर उनके पास काफ़ी रिस्पॉन्स है तो फिर वो शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। अगर आप उसके लिए फिट हो रहे हो तो ही वो करेंगे। तो वो पॉजिटिव स्पिन आपको डालना पड़ेगा आपके रेज्यूम में। Then create a powerful, competent and experienced image by using action word to describe yourself and your accomplishment. आप जैसे बोल सकते हो कि I'm a क्या बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस एजुकेटर, और I'm a team player, है ना, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, लाइक ये इस टाइप के एडजेक्टिव जहाँ पे वर्ब से पता चल रहा है आपके काम, आप मतलब क्या आपकी स्पेशलिटी है, तो उस टाइप की चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हो जो आपको डिस्क्राइब करता है इन अ वेरी शॉर्ट वे, इन अ वेरी ब्रीफ वे। तो इस टाइप के आप एक्शन वर्ड उसमें डाल सकते हो आपके अकम्प्लिशमेंट को ये करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। अब स्टेप 3 क्या है? मेक श्योर यू एंड द पोजिशन आर मैच। अगर मैच ही नहीं है, आप टीचर बनना चाह रहे हो, आपके पास क्वालिफिकेशन टीचर का है एंड वहाँ पे उनको पोजीशन है सलून की, कोई हेयर कट ड्रेसर चाहिए, उनको हेयर ड्रेसर चाहिए, ऑफ कोर्स यू डोंट हैव द रेलेवेंट क्वालिफिकेशन, है ना, आपने वो स्किल्स नहीं सीखे हैं। किसी को कैसे भी कट कर दिया तो हो गया, कैसे नहीं होता है एक्चुअली, दे नीड मोर स्किल पीपल, राइट? एंड कोई किसी से भी नहीं कटाता, ऑफ कोर्स जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास ही लोग जाते हैं। बेसिकली आपको पहले तो प्रॉपर फिट हो रहे हो कि नहीं आप उस पोजीशन के लिए, वो आपको चेक करना पड़ेगा, रेलेवेंसी देखनी पड़ेगी, तभी आप वहाँ पे अप्लाई करो। अदरवाइज आपको पता चला किसके यहाँ से ये है डिस्टर्बेंस है, म्यूट पे रहो। हाँ बोलो। त्यांनी मला डायरेक्ट काय केलं, व्हाईस प्रिन्सिपलनी आणि टीचर होती, त्यांनी डायरेक्ट स्पोर्टचं मला मॅथ्सचं दिलं आणि असं समज की मुलांमध्ये शिकवणार आहे असं केलं आणि एक ॲडिशनचा सम दिला आणि म्हणजे आता तू असं समज की तू मुलांना शिकवते, मला जमलंच नाही, मी बोर्डावर आहे तसं लिहिलं, म्हणजे बोलण्याची जमली नाही। डेमो तो होता ही है, पेरेंट्स के लिए तो होम सेक्शन नहीं लेते हैं। अभी बहुत है टीचिंग के, इसमें मिनिमम 3 स्टेज होगा, पहले पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर डेमो सेशन होगा एंड उसके बाद एचआर इंटरव्यू होगा जहाँ पे सैलरी एंड ऑल अगर आपका ये सोफा है बट डेमो तो आपको देना ही पड़ेगा। टीचिंग के किसी भी पोजीशन के लिए जाओ आपको डेमो सेशन देना ही पड़ेगा, स्टूडेंट के सामने आपको वो डेमो देने के लिए देना पड़ेगा, उसके बिना आपका मतलब है ही नहीं।
3 मिनिमम रहेंगे। मैं डेमो सेशन मतलब डेमो सेशन मतलब क्लास में जाके पढ़ाना। अच्छा अच्छा। जो भी पोजीशन है उससे रिलेटेड जो भी चीज है, जो भी स्किल है, वो आपको वहां पे जाके दिखाना पड़ता है, उसे डेमो कहते हैं। अगर आप आईटी के जॉब के लिए जा रहे हो तो वो आपको छोटा सा प्रोग्राम दे सकते हैं, आपको कोड लिखना पड़ेगा। देन अगर आप किसी ऐसी पोजीशन के लिए जा रहे हो, जैसे आप समझो सेल्स और मार्केटिंग पोजीशन के लिए जा रहे हो, तो बोलेंगे ये पेन है, ये बेच के दिखाओ, है ना। तो whatever kind of thing, whatever kind of job positions you are going for, they will ask you practical related things. इवन टीचर्स के लिए बहुत बार सिचुएशनल बेस्ड भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्लास में एक बच्चा बहुत रोने लग गया, अभी आपके पास 20 बच्चे हैं, 20 में से समझो 19 ठीक है, एक ही रो रहा है, आप क्या करोगे, किसे दोगे इम्पोर्टेंस, या फिर आपका पोजीशन ये मतलब क्या होगा, स्टेप क्या होगा, आप उसको कैसे हैंडल करोगे। दीज आर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो इट may come situation based questions may also come. So there are several things which you need to face, but yeah, these are the basic 3 steps in which your interview will be going to there. मॅडम तिथे गेलं ना काहीच आठवत नाही डायरेक्ट प्रिन्सिपल ओके। हाँ, फिर स्टेप 4, नो द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाके उस ऑर्गेनाइजेशन को चेक करना है, उनकी वेबसाइट देखनी है, पूरा रिसर्च करना है, उसके कहाँ कहाँ ब्रांचेस है, हेड ऑफिस कहाँ है, उनके पास लाइब्रेरी है क्या, न्यूज़पेपर में क्या मिल रहा है, उनके बारे में कुछ ऐड है क्या, क्या उन्होंने दिया है, कौन से कोर्सेज वो रन करते हैं, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। एंड देन स्टेप 5, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होती है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो पहले तो अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, मतलब सारी चीजें, एक तो पहले आपकी फाइल्स जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे आपका रेज्यूम है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती है जो लगती है तो साथ में रखनी पड़ेगी, स्टेपलर आपको रखना पड़ेगा, पेन आपको रखना पड़ेगा, ब्लैंक पेजेस आपको रखने पड़ेंगे, है ना। कहीं पे बोला जेरोक्स निकालना है, कहीं पे बोला एप्लीकेशन लिखना है, तो वो चीजें आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें खुद की आपको कैरी करनी पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइज योरसेल्फ में पहले तो आपकी फाइल एंड जो बिलोंगिंग्स है वो सारी चीजें नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जिस एड्रेस पे आपको जाना है पहले इन एडवांस आपने वो चीज देखनी चाहिए। हो सकता है कि वहां पे जाने के लिए दिखा रहा है मैप पे कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गई, रोड का काम चल रहा है, कोई रोड बंद है, जो भी है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया, तो लेट हो गए, फिर ऐसे हुआ कि आपको अलाउ नहीं कर रहे इंटरव्यू के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वेल इन एडवांस प्लेस देख के आ जाओ, बहुत अच्छी बात है। जैसे हम एग्जाम के लिए एक दिन पहले सेंटर देख के आते हैं, कभी बहुत बार ऐसे होता है कि रिस्क नहीं, टाइम पे कुछ ना हो जाए, तो इसलिए फिर वो रिस्क ना लेते हुए पहले देख लो कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो ऑर्गेनाइज में पहले ड्रेस वेल। ड्रेस वेल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। तो ऑफ कोर्स अगर आप टीचिंग प्रोफेशन के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बेस्ट सूटेड ड्रेस इज योर साड़ी, बिकॉज दो इट्स नॉट मैंडेटरी, अभी की टीचर्स मॉडर्न है, बट स्टिल इन द एजुकेशन फील्ड व्हेन इट कम्स टू टीचर, अब एक टीचर की अगर कोई आइडियल टीचर की इमेज देखते हैं तो वो प्रॉपर साड़ी में, कॉटन की साड़ी में दिखती है ना। तो एक अच्छी सी कॉटन की साड़ी आप स्पेशली अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो सिर्फ इंटरव्यू के लिए आप इंटरव्यू स्पेशल खरीद सकते हैं। सस्ती आती है कॉटन की साड़ी, सिर्फ उसको जब पहली बार ड्रैप करते हो आप तो उसको अच्छे से आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज लॉट ऑफ टाइम एंड आपका फिर क्योस हो जाएगा, आप लेट हो सकते हो। अदरवाइज ऑफ कोर्स इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल हो साड़ी में तो ही साड़ी पहन के जाओ, अदरवाइज सिंपल आपका जो भी कुर्ता आपका लगता है कि ये हाँ नॉर्मल आप पंजाबी सूट वगैरह पहनते हो तो यू मे गो इन दैट, डोंट गो इन कैजुअल्स। कैजुअल्स नहीं पहनने हैं, जीन्स नहीं जाना है, ट्राउजर्स चलेगा अगर आप वेस्टर्न उसको वेस्टर्न फॉर्मल, दिस इज वेस्टर्न फॉर्मल, इट्स ओके। कॉलर है, स्टैंड कॉलर जहाँ होता है, इट्स अ फॉर्मल, इट्स नॉट कैजुअल। इफ टी शर्ट टाइप का कुछ पहनते हैं एंड इफ इट्स नॉट ये कैसे इसका पैंट है ना, दिस कम्स इन फॉर्मल एंड जीन्स कम्स इन कैजुअल। तो कैजुअल नहीं होना चाहिए, आपको फॉर्मल गेटअप में जाना है। वेस्टर्न चलेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट शुड बी फॉर्मल, इट शुड नॉट बी कैजुअल, दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ईट वेल, खा के जाओ,
पता चल गया उधर गए बेहोश हो गए है ना। खा के जाओ, पी के जाओ, अच्छे से रेस्ट करके जाओ। अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टेंशन में रात भर आपको नींद ही नहीं आई या फिर कुछ हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। टाइम पे सो जाओ, होता है ना। हाँ, और फेस है हमेशा हैप्पी रखो, स्माइल। देन बी कॉन्फिडेंट, बी योरसेल्फ, बी हम्बल, बी रिस्पेक्टिव, शो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। ये कुछ टिप्स है जो आपको इंटरव्यू अपीयर करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हमने देखे कि भाई हाँ, इंटरव्यू के लिए हमें ये चीजें तो मिनिमम करनी चाहिए। ये स्लाइड क्लियर है सबको? यस Are you ready? Yes, ma'am. Okay. यस यस मैम। 8 मिनट के बाद फिर से सेम मीटिंग को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव पे आ गए हैं कि कोई भी इंटरव्यू के लिए आप जाओगे तो वहां पे एक क्वेश्चन कंपल्सरी पूछेंगे ही आपको, दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, है ना। और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप अच्छे से दे पाए तो आप इंटरव्यू क्रैक कर ही दोगे। ठीक है, देखो इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो रहा है, बहुत सारे स्कूल मुझे रोज बोल रहे हैं मैं कैंपस रखने वाली हूँ, सबको प्रिपेयर करना है अच्छे से। आज का सेशन मिस मत करो, अच्छे से नोट डाउन करो, नोट्स लिखो। कैंपस के लिए कौन कौन आएगा बता दो मुझे, मैं आज भी बुला सकती हूँ, कल भी बुला सकती हूँ। कहाँ है मैडम? पुनावले में है। लोणावळा लोणावळा नहीं, पुनावले। म्हणजे प्रॉपर पुण्यातच आहे का ते? हाँ हाँ, पुण्यातच। ठीक है, तो सबको नोट डाउन करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे 7 मिनट रह गए इस मीटिंग के लिए, बट लेट्स सी, एटलीस्ट ये स्लाइड हो गया तो हम देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को टेल मी अबाउट योरसेल्फ को पूछ सकते हैं, डिफाइन योरसेल्फ, जस्ट एक्सप्लेन मोर अबाउट योर रेज्यूम, लेट मी नो अबाउट यू बीइंग अ पर्सन। तो इसको अलग अलग तरीके से वो पूछ सकते हैं, कोई भी स्टाइल से, किस टाइप के एक्चुअली पर्सन आपको वो पूछ रहे हैं उस पे हो सकता है कि ये जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो, बट फाइनली उनको आपके बारे में पता करना है। अब ये क्यों है, ये ऐसा तो नहीं कि आपने उनको बताया नहीं, आपने तो रेज्यूम भेजा था, उनके पास सब कुछ है, आपका नाम क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या, सब है वहां पे, है ना। बट स्टिल व्हाई दे आर आस्किंग, ऑफ कोर्स दे वांट टू नो फ्रॉम योर एंड कि आप कितने एंथुसियाज्म के साथ उनको सारी चीजें बताते हो। ऑफ कोर्स वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देखना चाहते हैं एंड दे वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू, है ना, कि आप क्या हो, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, तो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है, ओवरऑल आपका बॉडी लैंग्वेज एंड tone, voice, speech, everything actually they are going to observe during the answer of this particular question. तो of course आप जब इसको आंसर करते हो तो ये हम 10 स्टेप्स में देखेंगे एंड लास्ट में हम इसका एक डेमो भी देखेंगे। तो अभी पहली स्टेप है ग्रीटिंग्स। अभी आपको जैसे उस टाइम पे कौन से टाइम पे आप पहुंचते हो तो ये तो सबको पता है, गुड मॉर्निंग कब से कब तक बोलना है बोलो बोलो जल्दी, हाँ टाइम बोलो। Till afternoon 12. बिफोर 12 AM PM। आफ्टरनून का क्या होता है, PM होता है कि AM होता है? दोपहर AM होता है? नहीं, PM होता है। I know this confusion is always there। आफ्टरनून इज PM, है ना। रात के 12 AM होते हैं क्योंकि वहां से दूसरा दिन शुरू होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। एग्जैक्टली 12 बजे नून होता है ना। तो बिफोर नून इज गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून इज आफ्टर, ऑफ कोर्स गुड आफ्टरनून, एंड देन आफ्टर 4:35 यू मे से गुड इवनिंग टिल मिडनाइट, है ना। आप बोल सकते हो, यू मे स्टार्ट योर कॉन्वर्सेशन विद गुड नाइट से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होता, गुड इवनिंग से, एंड देन एंड विद अगर नाइट हो गई है एंड यू आर गोइंग टू नाउ लाइक नथिंग इज देयर, देन गुड नाइट, है ना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हाय हेलो यू शुड नॉट से, है ना। हाय हेलो कैजुअल अप्रोच होता है, हाय माय नेम इज डॉक्टर मीता, रॉन्ग, जाओ बाहर, इधर रास्ता है, इट मे हैपन, है ना। सो नेवर come up with the greetings like hi hello, it's for the very casual setting. Of course for the professional setting it's only wishing good afternoon, good morning, good evening, so that kind of thing. Even when you work
in a working culture also, until and unless you are not very friendly with your colleagues and all, up to that moment of time for everyone or to your higher authorities and all, you have to wish them properly with good morning, good afternoon, not hi, hello. बहुत आपके close friend है, that's fine in the casual setting, that may do. But here in the professional setting, hi, hello will not suits for the greetings. Okay, तो पहला आपको greeting से start करना है. Then actually you should be grateful that they have called you, they have given you the opportunity. है ना, उन्होंने आपको बुलाया है, so you should be thankful, because if you are not क्या बोलते हैं, उनको recognize अगर आप नहीं करते, बहुत बार actually मुझे तो मतलब ये experience अभी इतने सालों में जॉब लेते हैं थैंक यू भी नहीं कहते, मतलब ये तो इंटरव्यू की बात है मैंने कितने लोगों को जॉब दिलाया है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, आज तक एक कॉल करके भी नहीं बता देती मैडम आपकी वजह से जॉब मिल गया, नो वन रिकॉग्नाइज, ये एक्चुअली थैंकलेस जॉब है, दैट्स फाइन. अभी हम लोग रोज अपॉर्चुनिटीज डालते हैं, बहुत सारे लोग जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उनको जॉब भी मिल जाता है, नो वन इवन टेल अस और इन्फॉर्म अस कि मैम आपके जो भेजा था मिल गया, नो वन इन्फॉर्म अस. तो एक्चुअली उनको लगता है कि उन्होंने इंटरव्यू दिया इसलिए उनको जॉब मिला, लेकिन हम नहीं देते थे तो कैसे मिलता था है ना. तो वो एक्चुअली एचआर के सारे ही चीजें जो है काफी थैंकलेस होते हैं, बट एटलीस्ट यू शुड बी थैंकफुल एज एंड व्हेन यू आर गोइंग, they have given you opportunity to come there and actually they would like to more about you, at least they feel that you are welcome for the position, though they might have not selected you, but at least they have given you the call, so you should thank them. So thank you for shortlisting or giving me this opportunity, so that kind of thing you can mention. Now after that, why you are qualified for the position. Third point है कि इस position के लिए आप किस तरह से क्वालिफाइड हो, आप क्यों एलिजिबल हो, क्या चीज आप में है, क्या स्किल्स आपके पास है, क्या एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना पड़ेगा. इसकी पूरी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट. तो ये आपको बताना पड़ेगा. अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत उससे रिलेवेंट चीजें जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो यू मेंशन दैट थिंग. आई एम ऑलरेडी हैविंग 6 years of I have handled nursery, junior, senior classes. I have handled many responsibility roles and responsibility. I was a coordinator for the event management and the complete event sector I used to handle there. So you may talk many things, whatever roles and responsibility you might have handled in your previous job. So you describe it properly, or in brief you just mention whatever kind of major positions you might work with the previous employer. If it's a current employer, then current or previous, कभी भी आपका जो करंट एम्प्लॉयर है उसके बारे में कोई भी बुरा चीज आपको दूसरे एम्प्लॉयर का नहीं बोलना है. नेवर, आप बता रहे थे ना मुझे, नेवर नेवर एवर से दैट ये ऐसे करते हैं वो वैसे करते हैं, यू विल नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कल आप इनको भी गालियां दो. दे नोज दैट इफ यू आर सेइंग बैड थिंग अबाउट देम, tomorrow you are going to say bad words about the current organizer also, or the current employer also. So never say any kind of bad word about your previous employer or your current employer. Don't mention anything. When they will ask you why you are switching the job for the better career opportunities, or I feel that I'm now having this much experience, so now I should actually seek for better opportunities for any kind of thing, you may say hike or whatever is your personal you may say opinion about that, कि आप क्यों shift करना चाहते हो, but don't tell the problem, whatever personal problem you might be having with your character. Never mention that and show them